आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत भारत के विद्यमान प्रधानमंत्री श्री महामहिम नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। परीक्षा पे चर्चा is an annual event held every year since 2018. During the event, Prime Minister of India interact with students, teachers and parents across the country and share his valuable tips to take board and entrance exams in stress-free manner. This year, Pariksha Pe Charcha is going to held on 1st of April and I urge you all to participate freely and fully in this event. Now, I would like to call Devesh Shiregond to express his thoughts on topic how Prime Minister's previous talk was helpful to him for facing exams. Devesh Shiregond. Regards everyone, I am Devesh Shiregond of class 10B of Jawahar Navodaya Vidyalaya, Solapur. I am elated and honored to get an opportunity to speak in front of you and express my views about the topic how Prime Minister's words in the previous Pariksha Pe Charcha 2018-22 helped me to increase my performance in exams. So, this was the first time in Indian history that a Prime Minister took students' phobia so seriously and openly guided them all on a platform where every student can express his views openly, freely and fairly with the Prime Minister and get solutions and his views on their topics and their stress points. So, for this thing, I would like to congratulate on the behalf of every student of our country and would like to thank our Prime Minister for his valuable and supportive guidance to us. So, in the last time, some topics discussed by Prime Minister and students were time management, stress management, concentration, focus, and how to increase concentration, ways to increase our writing practices, and effective ways to write papers, ways to write proper paper, and how to increase our vocabulary. So, before the topic or before the Pariksha Pe Charcha in Standard 8, I had listened to it, and before that I used to score 94% and would stuck up at 94. But since I have inculcated the points set by our Prime Minister, I have been scoring and achieving more marks. I would like to congratulate our sir and our teachers for their valuable guidances and our PM's important points that they were discussed in the previous Pariksha Pe Charcha. I, on the behalf of all students of our nation, would like to thank our Prime Minister sir for giving his valuable and important guidance and views on the exams and how to write exams. For that, I have been very thankful for him and would like to meet such a person in future. And thank you that I got an opportunity to speak in front of you. Thank you very much. थैंक यू देवेश। अब मैं संजीवनी नलवड़े को स्ट्रेस और पीयर प्रेशर को कैसे कम करें इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। संजीवनी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं संजीवनी नलवड़े कक्षा 10वीं की छात्रा जवाहर नवोदय विद्यालय पोखरापुर में पढ़ती हूँ। आज परीक्षा की चर्चा इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्ट्रेस और पीयर प्रेशर मैनेजमेंट इस विषय पर मैं बात करने जा रही हूँ। तो ये जो कार्यक्रम है परीक्षा पे चर्चा, यह देश के करोड़ों विद्यार्थियों का है। इस परीक्षा पे चर्चा इस कार्यक्रम में मैंने 2 वर्ष पूर्व जब मैं 8वीं कक्षा में थी तब मैंने भाग लिया था और नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रेरित होकर मैं आज स्ट्रेस और पीयर प्रेशर मैनेज कर पा रही हूँ। मोदी जी कहते हैं कि हमें कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और परीक्षा का तो बिल्कुल नहीं। परीक्षा एक कसौटी की तरह होती है, लेकिन वो जीवन की कसौटी नहीं होती है। किसी परीक्षा में पास या फेल होने से हमारा जीवन खत्म या बर्बाद नहीं हो जाता है, इसलिए हमें परीक्षा का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि जब हम परीक्षा का स्ट्रेस लेते हैं तब हमारा पूरा स्टडी होने के बावजूद भी हम परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं, हमारे पेपर्स खराब लिखते हैं, इसलिए हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। मेरा मोदी जी से अगला क्वेश्चन यह था कि हम पीयर प्रेशर को कैसे मैनेज करें, तो मोदी जी का जवाब इस पर बहुत ही अच्छा था और मैं आपको भी वह सुनाना चाहती हूँ। मोदी जी ने कहा कि विद्यार्थी जो है वो पक्षियों की तरह होता है। विद्यार्थी जो है कोई कोयल की तरह होता है जो अच्छा गाता है, कोई मोर की तरह होता है जो बहुत अच्छा दिखता है और कोई तोते की तरह होता है जो बातें करने में बहुत माहिर होता है, कोई बाज की तरह होता है जो आकाश में यानी एकेडमिक्स में बहुत ऊंचा उड़ता है। तो वो कहते हैं कि हर कोई बाज नहीं हो सकता है, हर एक की एक अलग स्पेशलिटी है। हमें किसी को देखकर पीयर प्रेशर नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट अलग है, उसका रखरखाव अलग है, उसकी सपने अलग है,
उसकी जो परवरिश हुई है वो कुछ अलग रखरखाव में हुई है और उसके जो संधियां मिली है, अपॉर्चुनिटीज मिली है, वो हमसे बहुत अलग है। तो हमें उससे देखकर पीयर प्रेशर क्यों आना चाहिए? तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी जी कहते हैं इस समस्या का एकमात्र समाधान है और वो है आपको अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ। हमें अपने मैदान में रहकर खेलना है, हमें दूसरों के मैदान में नहीं बल्कि अपने मैदान में रहकर ऐसा खेलना है कि हम दूसरों के लिए एक मॉडल बने और वो हमारे मैदान के ओर आकर्षित हो। मैं कल क्या थी और क्या आज मैं उससे 2 कदम आगे बढ़ पा रही हूँ क्या? कल मैंने मेरे 90% दिए थे, क्या आज मैं मेरे 100% दे पा रही हूँ क्या? जब मैं अपने 100% दे पाती हूँ तभी मुझे अपने आप को ये समझना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। अगर मैंने मेरे 100% दिए ही नहीं है तो मैं ये परीक्षा से अपेक्षा ही कैसे कर सकती हूँ कि मेरे गुण जो है वो अच्छे आने चाहिए। तो हमें अपने आप से यानी स्वयं से अनुस्पर्धा करनी है, दूसरों से नहीं। इसलिए आप जब ये सीख जाओगे अनुस्पर्धा करना तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपके अंदर से एक ऊर्जा मिलेगी और तब किसी भी क्षितिज को पार करने के लिए आपको दूसरों की जरूरत नहीं होगी। बस अपने आप में वो आत्मविश्वास और हौसला होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ। मोदी जी के विचारों से मैं बहुत प्रेरित हुई हूँ और देश के हर वो विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा पे चर्चा इस कार्यक्रम में भाग लिया है वो भी बहुत प्रेरित हो रहे हैं। मैं अब स्ट्रेस और पीयर प्रेशर कभी भी नहीं लेती हूँ और अपने परीक्षा में पहले से ज्यादा बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच मोदी जी। और सबसे मेरा ये अनुरोध है कि आप भी परीक्षा पे चर्चा इस कार्यक्रम में सहभाग लीजिए। 1 अप्रैल से यह कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, तो आप भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद संजीवनी. Now I would like to call Sarthak Matpati to express his words on importance of time management in exams. Sarthak. Good morning, friends. My name is Sarthak Matpati. I am from 10th standard. Today there is a PPC like as a Pariksha Pe Charcha from give a guidance from Narendra Modi. Narendra Modi gives the tips and tricks for a exam of tips and tricks from exam to give us motivation speak. And today I will take a topic on time management. We should make a time management properly in our daily life. Before a month of exam, we should practice as well as is possible. Please make a schedule that we are using in a daily use. We should study about 6 to 8 hours in daily life. If we study, we have to make 2 hours in exam. 2 hours as exam in the daily use. We have to keep all the remember points in our mind. We have to keep all the lectures of teachers given by of professors or all teachers in our daily life. We should have to all enjoy the all lectures that given by the teachers, professor and the principal. We should not study continuously in our daily use. We should take a break of 5 to 4 hours in study. We have to study all subjects as the 5 subjects. We have to make study in 2 hours. Thank you. थैंक यू सार्थक. अब मैं परीक्षा में आत्मविश्वास के महत्व पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मानसी दनवे को आमंत्रित करता हूँ. मानसी. सुप्रभात. मैं मानसी कक्षा 10वीं की कक्षा आज आपके सामने परीक्षा पे चर्चा इस कार्यक्रम के अंतर्गत आत्मविश्वास इस विषय पर बोलना चाहूंगी. आत्मविश्वास परीक्षा. आज मैं आत्मविश्वास इस विषय पर बोलना चाहूंगी. किसी भी परीक्षा को हमें तैयारी करने से पहले हमें यह आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम ये परीक्षा अच्छे से कर पाएंगे. इसलिए हमें जब हमारी पूरी भी तैयारी हो गई होती है लेकिन हमारे पास आत्मविश्वास नहीं होता तो हम इस परीक्षा को अच्छे से नहीं दे पाते हैं. किसी भी काम करने के लिए हमें आत्मविश्वास होना चाहिए. और अब आत्मविश्वास कैसे आता है? परीक्षा में अगर हमें कोई परीक्षा पास करनी है तो उसमें आत्मविश्वास कैसे आता है? पहले तो हमें उस परीक्षा की पूरी जानकारी होनी चाहिए. उसमें क्या सिलेबस है वो हमें पूरा आना चाहिए और उस सिलेबस को करने के लिए हम क्या ट्रिक्स और ट्रिप्स यूज करते हैं वो हमें पता होना चाहिए. धन्यवाद मानसी. हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश के साथ परीक्षा लिखते हैं.
लेकिन कई बार अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। जो गलतियां हम अक्सर करते हैं उन्हें सुधारने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं ओंकार वाघमारे को आमंत्रित करता हूँ। सुप्रभात। मैं ओंकार वाघमारे कक्षा 10वीं का छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय सोलापुर की तरफ से परीक्षा पे चर्चा के तहत अपना विषय एग्जाम के टिप्स एंड ट्रिक्स को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अक्सर हमारे जैसे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होता है कि वह एग्जाम में छोटी सी गलतियाँ कर देता है और या वह अपनी क्षमता के अनुसार एग्जाम लिख नहीं पाता। इसमें उसकी पढ़ाई नहीं होती ऐसा नहीं, या वह लिख पाता ऐसा नहीं होता, उसे आता है लेकिन कुछ छोटी सी गलतियाँ होती है जिसकी वजह से उसे कम मार्क्स मिलते हैं। इन्हीं छोटी गलतियों को सुधारने के लिए एग्जाम में कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें एग्जाम हॉल में समय से कुछ पहले ही पहुँचना चाहिए और हमें 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, उसे अच्छी तरह से रीड करके पूरी क्वेश्चन पेपर को समझना चाहिए। अब आप अपना पेपर इस तरह लिखें कि चेक करने वाले पर कुछ अच्छा इंप्रेशन हो। आप इसके लिए आपको अपनी हैंडराइटिंग अच्छी करनी चाहिए। आप अपने आंसर पॉइंट वाइज लिखिए और अपने आंसर्स पॉइंट वाइज लिखिए। क्वेश्चन पेपर को क्रमबद्धता पूर्वक लिखिए जिससे चेक करने वालों को वो आसान होगी कि वह अपना पेपर चेक करे। और पेपर सॉल्व करने तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसमें मेन पॉइंट को हाईलाइट करें। इसके लिए आप पेंसिल से उसे अंडरलाइन कर सकते हैं या ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप अपना पेपर पूरा तरह से कवर करें। एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि वो अनअटेम्प्टेड ना हो। और आखिर में यह कि आप अपना पेपर सॉल्व करते समय 5 मिनट पहले पूरा खत्म कर लें और इससे यह होगा कि आखिर के 5 मिनट में जो क्वेश्चन छूटा है आप वो चेक कर सकते हैं, या फिर आपने जो क्वेश्चन बाद में लिखने के लिए छोड़ा हो उसकी तरफ ध्यान जा सकता है और आपका पेपर पूरी तरह से कवर हो सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद ओंकार। अब मैं परीक्षा लिखते समय अपने माइंड को कैसे कंसंट्रेट करें इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए साक्षी बाबर को आमंत्रित करता हूँ। साक्षी। सुप्रभात। मैं साक्षी बाबर कक्षा 10वीं की विद्यार्थी जवाहर नवोदय विद्यालय सोलापुर से। आज मैं सबसे पहले तो मैं हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा मानना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने देश के सभी विद्यार्थियों की परेशानियों को समझा और अपना कीमती समय देके उन परेशानियों को खत्म किया। तो मैं आज नरेंद्र मोदी जी ने बताए हुए परीक्षा के लिए अपना एक मन एकाग्र कैसे करे इसका मुझ पर पड़े प्रभाव का वर्णन करने जा रही हूँ। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने बताया था कि हर एक विद्यार्थी दिन में किसी न किसी समय एकाग्रित होता है, या तो वो गाना सुनते समय हो या फिर अपने दोस्त से फोन पर बात करते समय हो। गाना सुनते समय उस विद्यार्थी को गाने के पहले के शब्द, उसके बाद के शब्द, या फोन पर बात करते समय सिर्फ दोस्त की आवाज़ आती है, उसके पीछे उसे अपनी माँ बुलाती है, उसके आजू बाजू में बहुत सारा शोर होता है, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं होता है। मतलब वो विद्यार्थी उस समय एकाग्रित है। यानी कि हर एक विद्यार्थी के पास एकाग्रित होने की शक्ति है, उसके पास कंसंट्रेशन पावर है। बस चीज़ इतनी करनी है हमें कि उस कंसंट्रेशन पावर को हमें जानना है, वो कैसे हासिल की वो देखनी है और उसे हमें पढ़ाई में अप्लाई करना है, और उसी तरह से हम पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाएंगे। उन्होंने हमें एक उदाहरण दिया, वो था सचिन तेंदुलकर जी का। उन्होंने बताया कि सचिन तेंदुलकर जी कभी भी खेलते समय यही सोचते हैं कि आने वाली गेंद क्या करनी है। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि पहले वाली गेंद को मैंने कैसे मारा, उसमें कैसे रन किए, इस मैच में मैं कितने खेल पाऊंगा। वो ऐसा कभी नहीं सोचते, वे सिर्फ आने वाली गेंद के बारे में सोचते और खेलते हैं। इससे ये पता चलता है कि भविष्य के बारे में ना सोचे, भूतकाल के बारे में ना सोचे, सिर्फ ये देखें कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है और हमें कैसे पढ़ना है। उन्होंने और एक बहुत अच्छी चीज़ बताई, वो थी डायरी लिखना। उन्होंने कहा 2 डायरियाँ बनाओ, एक डायरी जिसमें आप कल क्या करना चाहते हैं वो लिखो, और दूसरी डायरी जिसमें आपने आज क्या लिखा वो
आज क्या किया वो लिखो और 1 महीने बाद दोनों डायरियों को टैली करो और देखो कि आपने क्या क्या सोचा था और आपने क्या क्या किया। इससे आपको आपकी एकाग्रता कहाँ तक है ये पता चलेगा। उन्होंने एक और बताया कि योगा प्राणायाम करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये मन को एकाग्रित करती है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में योगा प्राणायाम इसका एकाग्रता बढ़ाने में बहुत अच्छी भूमिका है। इन सब का असर मुझ पर यह हुआ कि मैंने अपने अंदर की एकाग्रता शक्ति को पहचाना, उसे इस्तेमाल किया और योगा प्राणायाम करके मैं अपनी खुद को एकाग्रता बढ़ा रही हूँ और इससे मुझे पहले से ज्यादा अंक आसानी से प्राप्त हो रहे। धन्यवाद। धन्यवाद साक्षी। अपने माता पिता और शिक्षकों के बिना हमारा जीवन अधूरा ही होता है। इन्हीं माता पिता और शिक्षकों का हमारे जीवन में महत्व इस विषय पर बात करने के लिए मैं मयूरी शिंदे को आमंत्रित करता हूँ। मयूरी। सुप्रभात। मैं मयूरी शिंदे कक्षा 10वीं की विद्यार्थी जवाहर नवोदय विद्यालय सोलापुर से। सबसे पहले मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें और हमारे पेरेंट्स को बहुत अच्छे तरह से मार्गदर्शन किया। उन्होंने हमारे पेरेंट्स को सलाह दी कि वह हम बच्चों पर अपनी इच्छाएं न थोपे। उन्होंने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपनी इच्छाएं और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं और वो चाहते हैं कि अपने बच्चों इसको पूरा करें और अपनी इच्छाएं अपने बच्चों पर थोपी जाती हैं। सभी बच्चे अपने माता पिता के सपनों को पूरा नहीं कर पाते। सिर्फ वही कर पाते हैं जो उस क्षेत्र में अपनी रुचि रखते हैं। अगर कोई बच्चा जेईई के एग्जाम देकर इंजीनियर बनना चाहता है लेकिन उसके माता पिता उसके सिविल सर्विस के थ्रू उसे अधिकारी बनाना चाहते हैं और अपनी आशाएं उस पर थोपी जाती है, तो वह बच्चा न ही इंजीनियर की पढ़ाई कर सकता है और न ही अपने सिविल सर्विस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई में वो पीछे रह जाता है और बाद में माता पिता उसकी तुलना अन्य दूसरे बच्चों के साथ की जाती है। इसके कारण उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है और वो किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रगति नहीं कर पाता है। सबके सपने अलग अलग होते हैं। हर एक बच्चों की अलग अलग क्षेत्र में रुचि हो सकती है। तब उसी समय पेरेंट्स को अपने बच्चों से बातचीत करके उस बच्चों को क्या करना है, उसको क्या चाहता है, उस किस क्षेत्र में उसको काम करना है, इसमें ध्यान में रखकर ही फैसला लेना चाहिए। और अगर ये तय करने में परेशानी होती है तो उसे सलाह दे सकते हैं, उसे मार्गदर्शन कर सकते हैं। बच्चों को मार्गदर्शन करके उसे जिस क्षेत्र में जाना है उस क्षेत्र में वो जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिसके कारण मैं नरेंद्र मोदी जी को फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो उनकी वजह से मैं आज जिस क्षेत्र में जाना चाहती हूँ उस क्षेत्र में जा सकती हूँ और प्रगति कर सकती हूँ। इसके लिए मेरे पेरेंट्स का भी इसमें सपोर्ट है। धन्यवाद। धन्यवाद मयूरी। हमारे तन और मन दोनों को निरोगी रखने के लिए योगा एक महत्वपूर्ण बात है। इसी योगा का विद्यार्थी के जीवन में महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट करने के लिए मैं प्रतिभा तड़पे को आमंत्रित करता हूँ। प्रतिभा। सुप्रभात सभी को। मैं प्रतिभा कक्षा 10वीं की विद्यार्थी जवाहर नवोदय विद्यालय सोलापुर से हूँ। मैं आज आपके सामने परीक्षा पे चर्चा इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो मोदी जी ने हमें बताया कि योगा का महत्व हमारे स्टूडेंट लाइफ में क्या है, तो कुछ सवाल पूछे थे विद्यार्थियों ने कि योगा का महत्व क्या है, हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि योगा सिर्फ करने का नहीं होता, योगा करने से हमारा मन और मस्तिष्क जागृत होता है और जब हमारा मस्तिष्क जो जागृत हो जाता है, जब वो शुद्ध हो जाता है तो हमारी विचार क्षमता बढ़ जाती है और हम किसी चीज़ पर पूरे विचार से उसे मन लगा कर करते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ये भी समस्या आती है कि हम किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, हम एकाग्रता को भूल जाते हैं। हमने कुछ भी किया तो हम मन एक केंद्रित नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि हमें योगा करना चाहिए। जब हम हर रोज योगा करेंगे, वो हम 5 मिनट करें या 15 मिनट, हमें कुछ भी जो भी आता है वो करें। यदि हमें
कुछ आता ही नहीं है तो हम एक जगह बैठकर ध्यान साधना कर सकते हैं और हमारी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। और यदि मैंने ये किया है और मेरे जीवन में ये बदलाव आया है, मैं हर रोज ध्यान साधना तो करती हूँ और मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ। इसके कारण मैं किसी भी चीज़ पर या किसी भी काम पर एकाग्रता से विचार कर सकती हूँ या उस पर लक्ष्य केंद्रित कर सकती हूँ। इसके कारण मुझे बहुत अच्छे अंक मिलते हैं और मुझे मेरा एक लाइफ एक्सपीरियंस है। मैं साइंस में मुझे कम मार्क आते थे, तो मैंने जब मोदी जी की परीक्षा पे चर्चा ये कार्यक्रम देखा तो उन्होंने बताया, योगा का महत्व बताया, हमें एकाग्रता कैसे करनी चाहिए वो बताया। मैं बहुत करती थी लेकिन मेरा मन ही नहीं लगता था। मैं बहुत पढ़ती थी लेकिन कुछ याद ही नहीं रहता था। तो उन्होंने कहा कि योगा करो, प्राणायाम करो। तो मैंने हर रोज सोचा कि क्या हम हमारे लाइफ के कुछ 5 मिनट योगा में दे सकते हैं। मैंने वो किया और अब मुझे साइंस में बहुत अच्छे अंक मिल पाते हैं। तो मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप भी आपके लाइफ में हर रोज 5 मिनट तो योगा जरूर कीजिए। इसके कारण आपका जीवन बदल जाएगा। योगा करने में या एकाग्रता बढ़ाने के लिए आप ताड़ासन, वृक्षासन कर सकते हैं या आप आलोम विलोम, ध्यान साधना भी कर सकते हैं। धन्यवाद। Respected Vice Principal sir, my colleagues, Sri Nadagoda sir, and dear students. Today we have all assembled here to discuss about the Pariksha Pe Charcha. Really I am very much happy because all you have presented their opinions, their views, and I think all of you inspired by the speech given by our beloved Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. Really whatever the things he has told here, really all our students, not only assembled here, but maximum of students, they are inspired and they are implementing in their life. Really, all students, they are writing their exams stress free. Even I asked so many students whenever they are attempted the questions in term and exam. They all told that really sir, we have finished in time. Even I asked again some of the students, no sir, we have written stress free. Okay, even marks are immaterial here. How many marks you will get, it is not important. But how you will attempt all the questions, that is very important. So I am very much thankful of our Honorable Prime Minister who has given many tips for all the students of in our country. So thank you and thank you. Most respected Vice Principal Sri Vani sir, my senior colleague Sri Motpati sir, and dear students, really this assembly, this meeting has been very much encouraging and enthusiastic to all of us, that we are able to listen to some useful and motivational thoughts by the students. And I was thinking while listening to each and every student, how much confidence he has developed, because I have been English teacher in this school for last 6 years, and I have taught the children in class 6th. What was their mental, physical condition? What was their level of learning and grasping in English language or any other subject at that time? And what confidence they have developed in last 4 years? It is highly noticeable and remarkable. And this has been possible because of the inspirational speech given by our beloved Prime Minister Sri Narendra Modi ji through his function, through his program Pariksha Pe Charcha. Actually, when this program started and first ever episode was going to be conducted, I was also thinking
what Modi ji is going to tell different than all other learned teachers, professors and principals of various schools and colleges. But really, what he told, the points he touched, they were found very less in practice in different schools and colleges. Particularly practicing yoga, pranayam for concentration, to remove stress and tension, and to take the exam as a challenge, to only win. I am here to win. That should be our confidence and principle and motivation. And we have to think only about it. We have to remain stress-free, practice yoga, and do meditation. And as some of the students told, you write diary, what I have done throughout the day, what I am going to do tomorrow. That also gives us a planning, preparation, pre-plan of our activities for tomorrow. And really this has been very much inspirational and thought-worthy, thought-provoking. So I thank and congratulate all our countrymen that Modi ji, a versatile prime minister we have got forever, or rather the world has got a leader like Modi. And today Modi ji has been an icon not only for India, not only for Asia, but throughout for all the world itself. And so I appeal to all the citizens and countrymen, students in particular and teachers to attend this program of 1st April without fail and implement the things what he has suggested in your own life, particularly teachers and principals, so that if you inculcate them in yourself, then you will be able to transform them and transfer them to your students. And gradually everyone will be benefited. Thank you.